सो लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ लिया था कि अगर एक हमारा कंप्यूटर होता था, ठीक है, और एक हमारा सर्वर होता था, राइट? सॉरी। हाँ, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दो क्या? ठीक है, क्या गुड। तो एक हमारा सर्वर होता था, राइट? बट व्हाट विल हैपन इफ यहाँ पर मल्टीपल, यहाँ पर एक डिवाइस है, स्विच वगैरह या राउटर वगैरह, यहाँ मल्टीपल VLAN है। फॉर एग्जांपल यहाँ VLAN 1 के लिए आपको मिल रहा था, यहाँ VLAN 2 है, VLAN 3 है, VLAN 4 है। तो मल्टीपल नेटवर्क्स होंगे, राइट? राइट। So how DHCP यस। will provide the multiple VLAN IP addresses? Okay, that we are going to discuss today. Actually, not going to discuss. Formula will be the same. Only thing is that you know that in switching we have some kind of forwarding, right? Flooding, you can say. Flooding I explained already, right? So some of the unicast flooding, multicast flooding, broadcast flooding, right? So like if VLAN 1 is here configured, 1 is here configured, then broadcast flooding between happen between this port. If traffic will go this port, it will send on this port only, not any other VLAN configure. For example, here you have configured 2, here is 3. So only VLAN configured port, the traffic, I mean broadcast frame will be forwarded, right? Means it's going to separate the broadcast domain by using the VLAN configuration, correct? That you know. So once you will, for example, you have one VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. In that case, for example, PC is connected here. Oh यार, इंग्लिश में बार बार आ जाता हूँ। अगर पीसी यहाँ पर कनेक्टेड है तो इसका फॉर एग्जांपल VLAN 1 है, तो यहाँ पर एक राउटर मान ले रहा हूँ, यहाँ पर एक सर्वर कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर सर्वर कनेक्ट होगा और यहाँ पर मैंने बना दूंगा इसको ट्रंक, और ओके, ट्रंक बना दूंगा। एंड देन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सारे विलेन अलाउ कर लूंगा, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3। तो जब ये VLAN 1 वाला रिक्वेस्ट आएगा तो इसमें क्या होगा, आप इंटर एक्चुअली आप राउटर ऑन स्टिक करोगे, राइट? यहाँ पर राउटर ऑन स्टिक करोगे। रुको थोड़ा माउस मैं चेंज करता हूँ, नहीं चेंज नहीं रहने दो, फिर से ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे। तो इस समझ में आ रहा है ना, ये सर्वर है। हाँ। मुझे एक वो लेना है, पढ़ाने वाला पैड। भाई आई विल ट्राई टू परचेज सोन। तो यहाँ पर क्या है, आपको राउटर ऑन स्टिक है, तो हर एक पाइप बनी रहती, काइंड ऑफ वर्चुअल पाइप, राइट? यू ऑलरेडी नो, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन मोर डिटेल अबाउट ये क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर VLANing ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा चुका है, राइट? तो जब VLAN 1 वाला आएगा तो इस वाले पाइप से जाएगा, वर्चुअल पाइप से। जब VLAN 2 वाला जाएगा तो इससे जाएगा, VLAN 3 वाला जाएगा तो इससे जाएगा। तो ये वाला जाएगा तो इससे जाएगा, और 3 वाला जाएगा तो इससे जाएगा। सिंपल, राइट? एबल टू हियर मी? यस। ओके, कूल। सो and second thing, like how you will configure, uh, how you will configure DHCP server if you have multiple network. So someone last time someone asked about the scopes, right? So for the multiple VLAN, you will create multiple scope. We are calling as a scope. Means as soon as you are writing IP, DHCP, CP, pool, pool name, right? Pool name ABC. Okay, or you can say as a VLAN 1, right? So now you are inside the scope. Whatever you want to define inside the scope, you can define. Okay, cool. So you got bit sense like what we are going to do, what we are trying to achieve, right? So once it's been completed multiple VLAN, then we will say
if your server is not locally present, for example, here some router is there, here some router is there, here some router is there, okay, and your computer is connected on this switch here, for example, okay. Now your DHCP server is located here, one router is connected, or here only I can say, this of the device will be as a DHCP server, and this will be the internet, for example. Internet, and generally we are building the tunnel. We will see later on in VPN, but as of now, you can say as a consider the internet and our private IP address able to communicate to each other. So this server we will make as a DHCP server. So we will see how inter region or inter network DHCP works. So be known as a relay agent. Relay agent, or we are calling as a helper address. Helper address. Command is also IP helper address. In Nexus is bit change. Nexus device, NXOS. But you can say in Catalyst, which we are practicing right now. So you can say this helper address is the command, IP helper address as well. And someone is calling as how relay agent works. Okay. So these are the kind of question they can ask. This one we will see later on. Okay. Later means today only, but after this discussion. Is there any doubt what we are going to learn today? किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या कि क्या हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं? नहीं क्लियर है ना हमारा नहीं टारगेट क्या है? चलो, इफ्तिकार, जफर एंड वन मोर न्यू गाइज, मैं नाम भी भूल जाता हूँ बार बार यार, रुको नाम देखने दो। नितिन, हम्म। नितिन हेलो। हाँ हाँ, नहीं नितिन नहीं, नितिन कौन है? मुझे चाहिए, क्या नाम है उनका? ऋषु, ऋषु, ऋषु कहाँ है भाई? हाँ, बाहर मेरे को है। ऋषु कहाँ है? कहीं बाहर गए हुए हैं। और मैं, ओके, ज्वाइन नहीं किया। इफ्तिकार, कोई कंफ्यूजन है कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ? नित्या, जी सर। कोई कंफ्यूजन है सर क्या? हम लोग क्या टारगेट है, क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं, हमें पता चल गया राइट? पता चल गया सर। हमारे जो ठीक, डीएससीपी में मल्टीपल नेटवर्क को कैसे डाला जाता है जैसे हाँ वही है पहले उसको देखना है, फिर रिलेजेंट देखना, हेल्पर एड्रेस देखना है कैसे काम करता है, वहां पर सोर्स क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी पहला ये ओके। वाला लैब का है कि कैसे मल्टीपल विलेन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसमें। ओके। हाँ, चलो, बहुत दिन से इसका प्रैक्टिस नहीं किए थे हम लोग, इसका यूज कर लेते हैं। स्विचेस कोई भी एक ले लो जो विलेन सपोर्ट करता हो।
ओके, थोड़ा घर पे आ गया, थोड़ा डिस्टरबेंस चल रही है, कोई फोन कर रहा है यार। होल्ड ऑन मैन, गिव मी मोमेंट। Okay, sorry man, I got the call. Okay, now we have taken a router as a DHCP server. Now we are taking a switch where we will connect, two PC at least. 3 billion will be okay? Or you want to me configure more? It should be enough. Huh? 3 will be okay, sir. Okay, great. Fine. So let's quickly configure the things in the switches. So port number 1 will be trunk, this one, and rest of the port will be access port with the particular VLAN. So what you need to do? First, you need to configure the host name. In the real company, host name is already configured, so you no need to do anything. But sometimes question is also coming, right? How you will configure a VLAN? So you cannot say only we will write VLAN 2 and that's it. It's not correct answer. Okay. So I will explain what are the things you need to create a VLAN. You know, it's a lot of work we need to do to creating a VLAN. It's new VLAN. So that we will discuss later on because it's big topic, not a very small. We will add and we will show you how that network is created. You are going to add inside the network. उसके बाद वो नया VLAN का यूजर कैसे इंटरनेट पे या फिर कैसे दूसरे साइट से कम्युनिकेट कर रहा है, उसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। मुझसे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 टाइम तो मैंने देखा है। ओके, नाउ let's configure the VLAN. VLAN 2 is configured. Now VLAN 3. ओके, 3 कन्फिगर कर दे रहा हूँ, फिर से एग्जिट जाते हैं, फिर से VLAN नंबर 4। तो 2, 3 और 4 उसका हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस फर्स्ट को पहले थोड़ा सा होस्ट नेम चेंज कर लो। होस्ट नेम स्विच नंबर 1। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, इंटरफेस 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 FH0/1 switch port mode trunk. Okay, switch port trunk allowed VLAN 1 to 4. Okay, cool, right? Now how you will associate the port? So interface range FH0/1 2 to 3. Okay, 2 to 3. switch port mode access, switch port access VLAN 2. Do so history. Okay, cool, 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 cool. Notepad. Eh, क्यों? चलो, DCP का सर्वर कॉन्फ़िगरेशन ये दिखा दिया था, तो ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। 3 देन 4 to 5 कौन सा बिलन है, बिलन 3, सॉरी 3 और
अब क्या कर दें, कंट्रोल भी, फिर कॉपी करते हैं इसको। तो VLAN 4 और पोर्ट नंबर 627, राइट? कुछ चीज गलत तो नहीं हो रहा है, सही है ना? मतलब हमने दो दो पोर्ट का VLAN 2, 3 और 4 में डाल दिया है। क्लियर, क्लियर है? यहाँ पोर्ट भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, हाँ ठीक है, 2 3 4 5 6 7। 4 5 6 7, यही तो कॉन्फ़िगर करना है, राइट? तो यहाँ पर जाओ, एग्जिट करो, और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। पेस्ट हो गया, डन। कॉन्फ़िगर हो गया VLAN। VLAN से साथ पोर्ट भी एसोसिएट हो गया, सो वी आर गुड। कैसे चेक करोगे पोर्ट के साथ VLAN एसोसिएटेड है कि नहीं? सो VLAN ब्रीफ, ये कमांड चलाओगे तो आपको दिख जाएगा कि VLAN 2 में टू पोर्ट नंबर 2 है और पोर्ट नंबर 3 है। VLAN 3 में पोर्ट नंबर 4 है एंड 5 है। देन 4 इसमें 6 एंड 7 है। 6 ओके, 7। वी आर गुड नाउ। नाउ we do not have like IP address on the PCs, right? You can see IP. So we need to click on DSCP. Okay, but before that, once you will click here, see, I click on DSCP, but I have not configured DSCP. Guys, notice what this IP known as. APIPA, right? सबनेट मास्क मीन्स क्लास बी का एड्रेस होता है, राइट? APIPA का। और उसमें कोई भी पैरामीटर, डिफॉल्ट गेटवे, DNS वगैरह कुछ डिफाइंड होता है? मैंने बोला था कुछ भी डिफाइंड नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने बताया था, एक लाइन मैंने लिखाया था, नथिंग इज डिफाइंड। अगर आपको याद होगा, मुझे याद है कि मैंने लिखा था, पढ़ा था, बट लेट मी सी। Yes, तो ये it अगर works as DHP server for locally and nothing is defined. हाँ, नथिंग यही इज आईपी लाइन पिंग डिफाइंड। करेंगे ओके, तो मुझे पिंग नहीं होगा। हाँ, ये आईपी अगर पिंग करेंगे तो पिंग होगा कि नहीं होगा? ये मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, बट लेट्स सी। ये आईपी वैसे पिंग नहीं होना चाहिए, एक्चुअली लोकली है, एक्चुअली लोकल DSCP है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो एक बार करना अगर, ट्राई भी। हाँ मैं अभी करते हैं। अभी अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना, अब हम ट्राई करके देख लेंगे पिंग होता है कि नहीं। बट जनरली मेरा सिक्स सेंस का रन नहीं होगा, बट विल सी। ओके, सर अपिपा क्या यूज होता है सर अपिपा? अपीपा का ये यूज होता है, फॉर एग्जांपल, आप पढ़े नहीं थे क्या आज? अपीपा का फुल फॉर्म होता है मैं जितना ऑटोमेटिक ये मैम प्राइवेट मैं सर आईपी जितना जानता एड्रेसिंग। हूँ हम्म, इसका फुल फॉर्म पहले सर समझ लो। मैं इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक प्राइवेट आई, क्या है, अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ओके, सो ये क्या होता है एक्चुअली? जी अगर हमारा एक कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल ये वाला कंप्यूटर है, राइट? ये वाला एक कंप्यूटर है, ये अगर DSC बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, राइट? बार बार डिस्कवर पैकेट भेज रहा है, राइट? बट जैसे मेरे केस में DSCP कॉन्फ़िगर ही नहीं है, राइट? अब DSCP उसको अगर नहीं मिल पाया ड्यू टू सम राउटिंग ब्लॉकेज, या तो फिर कोई इशू है पोर्ट में, इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो कंप्यूटर क्या करेगा? बार बार डिस्कवर पैकेट भेजता रहेगा, राइट? इसको स्टॉप जी करने के लिए एक कंप्यूटर में सेल्फ का फीचर है, सेल्फ असाइंड का फीचर है, जो काम करता है एक इंटरनल DSCP सर्वर। मींस अगर विंडो का है या फिर लिनक्स का है तो सबका अलग अलग फीचर्स रहता है। सेल्फ DSCP सर्वर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्ट बार बार जनरेट कर रहा है, नेटवर्क को डिस्टर्ब कर रहा है, इसको बंद कर दे। ठीक है, इसको 3 बार या 4 बार इसको भेजता है डिस्कवर पैकेट, अगर उसको नहीं रिसीव होता है तो ऑटोमेटिक अपने इंटरनल सर्वर से एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, जिसको बोलते हैं अपीपा आईपी एड्रेसिंग। क्यों करते हैं वो भी जान लिया आपने। स्टॉप टू ब्रॉडकास्ट डिस्कवर पैकेट, राइट? मल्टीपल टाइम ब्रॉडकास्ट डिस्कवर पैकेट को ना भेजने के लिए
हम एक आईपी एड्रेस, भाई वो क्या बोल रहा था कि मुझे आईपी चाहिए, तो एक खुद का डीएचसीपी जो अंदर का था उसमें बट कुछ डिफाइंड नहीं था, उसने असाइन कर दिया ले। लेकिन अब बोलना बंद कर दे भाई कि हमें आईपी अभी भी चाहिए। समझ गए नित्या कि ये मल्टीपल टाइम बोल रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है जी जी सबको। जी जी। तो कोई परिवार का मेंबर होता है और बोलता है कि इस बंदे को बाहर ले जाओ। तो एक बंदा इसको बाहर, गेट के बाहर ले जाके बात करने लगता है, और देन और सब आपस में आराम से बातें करने लगते हैं, राइट। तो वैसे यहाँ भी है, इसको भी एक कुछ चॉकलेट वगैरह दे के चुप करा देते हैं। तो चॉकलेट का नाम है अपीपा, काइंड ऑफ। समझ गया। अच्छा। जी मीन्स सेल्फ असाइंड आईपी एड्रेस को अपीपा आईपी एड्रेस कह देते हैं। और सेल्फ असाइंड करता कौन है? इंटरनल डीएचसीपी सर्वर। होता क्यों है? क्योंकि डिस्कवर पैकेट को बार बार जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, क्योंकि डिस्कवर हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है, उसको स्टॉप करने के लिए मैंने ये भी लिखाया था, टू स्टॉप अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट पैकेट, discover packet, we are using the this apipa features, self assigned IP address features. ये यार तो फीचर तो है ये वाला। ठीक है, क्लियर है। और आपको चाहिए अपीपा को थोड़ा ज्यादा पढ़ने के लिए, तो मैं आपको वो दे सकता हूँ। ये नोट्स है ना ये वाला, यहाँ अपीपा मैंने लिखाया था ना। अपीपा, अपीपा ये है ना, व्हाट इज अपीपा? इट सर स्टैंड फॉर हाँ ऑटोमेटिक हाँ प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड इट्स default DHCP server in the system. Once DHCP will not responds to system, in that case system will assign a apipa IP address to itself. खुद के अपने आईप को असाइन कर लेता है। एडवांटेज क्या है? स्टॉप अननेसेसरी, इट्स वर्क एज ए डीएचसीपी सर्वर फॉर लोकली एंड नथिंग इज डिफाइंड। ये मैंने लिखाया था, क्योंकि आईपी और सबनेट मास्क सिर्फ डिफाइंड है, बाकी कुछ भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है। चलो, क्लियर आई होप, राइट नित्यानंद? जी जी जी। एनी मोर क्लियरिटी you required, or it's enough for you? इट्स ठीक है, इतना ही काफी है। ठीक है। ओके ग्रेट। ओके नाउ ओके, आईपी हो गया था, राइट। इसको हमने ट्रंकिंग बना दिया था, और ट्रंकिंग हमें देखना है इंटरफेस ट्रंक। ओके, इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो इंटरफेस ट्रंक, कुछ भी ट्रंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरफेस डाउन पड़ा है। दिखाता हूँ कैसे चेक करोगे इंटरफेस डाउन है कि अप है। सो इंटरफेस, इंटरफेस नेम एंड नंबर। देखो, लाइन प्रोटोकॉल डाउन है, हमने डाउन नहीं किया है, लाइन प्रोटोकॉल डाउन है। मे बी केबल फॉल्टी होगा, मे बी उधर साइड कोई शट डाउन किया होगा। यहाँ पर डिसेबल दिख रहा है, मतलब अदर साइड कोई डिसेबल्ड है, ऐसा आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने एडमिन शट डाउन यहाँ नहीं किया है, इसके लिए ऐसा है। राउटर से इंटरविलेनिंग कमांड कौन बताएगा मुझे स्विच में, राउटर में? बताओ भाई। इंटरफेस इंटरफेस GI 0 स्लैश कौन सा वन सेकंड, पोर्ट है वन सेकंड, वन 12 सेकंड, वन सेकंड। ठीक है, इंटरफेस GI 0 स्लैश 0 200 ये है ना आईपी पोर्ट इंटरफेस ब्रीफ। तो हमारे पास 0/0 यूज कर रहा हूँ। 0 स्लैश 0। ठीक है, चलो। चलो ठीक है, आईपी एड्रेस, सॉरी, इंटरफेस इंटरफेस, दिस वन। उसके बाद क्या कमांड चलाऊं? नो सेट करेंगे पहले से। हाँ, नो सेट करेंगे इसे। नो सट। हाँ, पहले तो अभी ऑनलाइन करेंगे। और क्या कमांड चलाना है? सभी बोल सकते हैं इसके भाई, बाद कोई जरूरी नहीं है एक ही लोग बोलेगा। नहीं, अभी ये 0 स्लैश 0 की डॉट वीलैन नंबर जो भी जिस वीलैन के लिए करना हो, इंटर वीलैन है यहीं पे वो डाल दूं? कॉन्फ़िगर करें। हाँ यहाँ पे भी कर सकते हैं। हाँ,
कर सकते हैं यहाँ पे भी। कौन बोला? अनुराग। ये करेक्ट नहीं है। नो शट डाउन, नो आईपैड। प्लीज पढ़ा करो यार, प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते, मैं जान गया। इसीलिए मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लेता हूँ, फिजिकली पढ़ाता हूँ जहां मैं एक एक चीज प्रैक्टिस करवा सकूं लोगों को। क्या करना है? नो वेटर, नो नो शट डाउन, नो आईपी एड्रेस। ठीक है, ये पहला कमांड चलेगा। फिर दूसरा कमांड चलेगा, यहाँ पर डॉट लगाओ, ये वर्चुअल क्रिएट होगा। पहले यहाँ पर आपको पूरा इंटरफेस को अप करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 3 डाल दिया। ठीक है, ओके। स्विच, इसको, इसका कमांड है इन कैप्सुलेशन डॉट 1Q-3 नंबर जो भी है। 2 देन आईपी एड्रेस। क्या आईपी एड्रेस होगा? पहले का 10 ले लेता हूँ, दूसरे का 20, तीसरे का 30, चलेगा? 0.1 सबनेट मास्क /24 ले लूं? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है 24 लेने में? नो शट डाउन, क्लियर? चला के देख लो। वैसे यहाँ वर्चुअल नो शट डाउन भी नहीं दोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमांड परफेक्ट है। मुझे अभी भी कमांड याद है, मैं भूला नहीं हूँ। अनसाइंड, अप 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 अप। ठीक है, कमांड सही है। अब सारा अप्लाई कर दो हर जगह। तो ये वाला कॉपी कर लो, एक 10 का है, एक सब इंटरफेस बना दो 20 का। यहाँ पर 20 लिख लो, बस 2, दैट्स इट। यहाँ पर 3 कर लो। तो ये इनकैप्सुलेशन वाला भी। हाँ इनकैप्सुलेशन डॉट हाँ, ये जरूरी है 3। ये यहाँ पर कर लो, यहाँ पर 4। फोर, बिलियन 4 के लिए यहाँ पर 3, चलेगा? कूल राइट? सारे इंटरफेस आप आ गए? डन। अब कॉन्फ़िग डी, अब डिफाइन करते हैं क्या? डीएससीपी। डीएससीपी, राइट? वो कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास कमांड ऑलरेडी लिखी है, मैं एक थोड़ा टाइम दे दूंगा, आप लोगों को समझ लो पहले। अगर कोई इसमें कमांड, कोई कन्फ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है कि ये क्यों, ये लाइन क्यों लिखी गई है, ये नंबर क्यों लिखा गया है, ये नंबर क्या काम करता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी को कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बाद मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसके बाद नया रिकॉर्डिंग शुरू होगी जिसमें डीएससीपी कन्फिगरेशन मैं कराऊंगा, ठीक है?